Welcome everyone. I am here with the topic Traces changes through thousand years. So in this topic हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 1. In this chapter we will discuss about 1. The map study. Second, new and old terminology, नई और पुरानी शब्दावली. Sources to know the past and the difficulties in knowing the past by the historians. New social and political groups. Region and empire. Old and new religion. Thinking of time and historical periods. So in this topic, the traces changes through 1,000 years. हजार वर्षों के दौरान परिवर्तनों की पड़ताल करने के लिए, तो इसमें जो हम दैट वी विल स्टडी फ्रॉम 700 AD टू ऑलमोस्ट 750 AD, और it is known as CE, current era also, Anno Domini, and this is current era. So in this it is that the changes about the rules and the rulers, that in this from 700 to 1750, that how many rules and the rulers they changed, and what was the impact on the masses, and the political areas, the boundaries of the states and countries, that also changed. As the rulers changed, so boundaries also that extended, and that were shrinked and were formed another boundaries. And the languages also, they were also changed in these many years, as well as many other the aspect, that is the cultural, educational, social aspect, food, eating habits, जो इसको हम सांस्कृतिक, शैक्षणिक, सामाजिक, भोजन, तकनीक इत्यादि में बहुत सारे परिवर्तन हुए. और हिस्टोरिकल प्रेफरेंसेस, हमारी जो ये हिस्ट्री को जानने के लिए जो मतलब महत्ता है, जो जानने की इच्छा है सबकी, तो वो उसमें भी काफ़ी सारे परिवर्तन हुए. एज फॉर द ब्रिटिशर्स, दे वांट टू हाईलाइट देयर ओन हिस्ट्री, and for the Indians, they want to highlight their own history, as well as what is the interest to study about that history. जो इतिहास जानना है, किसको कौन सा इतिहास जानना है, उस पर ये डिपेंड करता है कि हम इतिहास के कौन सी हिस्से को जानना चाहते हैं. तो उन सब की पढ़ाई में और पढ़ने के तरीके में भी परिवर्तन हुए हैं. तो ये सब हम इसमें वी विल डू ऑल दीज इन दिस टॉपिक. This is the chapter from where it begins, that first you will see this map, and you will see this map, and in the another page you will see this map. Now what is the difference? This is map 1 and this is map 2. Map 1 is written in the 1154 C current era, and the map 2 is that made in 1720, and it is written by Arab geographer. It is made by Arab geographer, and it is made by the French cartographer. Now geographer is that who study about the geography, and the cartographer is मानचित्रकार जिसको कहते हैं, that is who study about the map, that is known as a cartographer. जो व्यक्ति नक्शे को बनाता है उसको स्टडी करता है कार्टोग्राफी, और बनाने के लिए उसको कार्टोग्राफर हो गया, स्टडी कार्टोग्राफी. So this the map of India, which we are looking here. This map of India, this is also a map of India, this is also the map of India. Now this map is the part of that world map, and it is the part of the atlas, which was made by the Golim de Isles. This map, a French cartographer, Golim de Isles
he made this atlas, and from that atlas it is one of that where he has shown this India. और दूसरा जो ये अरब के जो भूगोलवेता है, उन्होंने ये मैप बनाया वर्ल्ड का, और उसके वर्ल्ड के मैप का एक पार्ट है जिसमें कि ये इंडिया को भी उन्होंने दर्शाया है। ये अल इदरिस ने इसको बनाया है। एंड both these map have the detailed informations as well as this have the accurate information. Accurate in the sense, ये जो इंडिया है ये हमें आज ऐसा ही दिखता है जैसा कि उन्होंने उस समय इसको दिखाया है 1720 में। और ये जो मैप बनाया 1154 में बाय अल इदरिस, ये इसमें आप देखेंगे तो ये श्रीलंका को एक दिखाने की कोशिश की है, और इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है वो उल्टा हो गया है, टॉप टू डाउन। तो ये मतलब जो हमारा जो टॉप टू डाउन ऊपर हिमालयज होने चाहिए थे, वो दे हैव गॉन डाउनवर्ड एंड द साउथ हैव कम एट द टॉप। तो ये इस तरह से थोड़ा सा इसमें अंतर आ गया। तो ये इंफॉर्मेशन तो डिटेल्ड है इन बोथ द मैप्स, इंफॉर्मेशन इज़ इन डिटेल, लेकिन जो फ़र्क आया है वो इसमें जो डायरेक्शंस है, डायरेक्शंस में फ़र्क आया है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस दैट मैप 1 एंड मैप 2. So this is what we have gone through, that 1154 this is made, and it is in 720 Arab geographer, and he is the French geographer. Al Idris, Ghulam the Isles, world map, part of atlas, detailed information, detailed and accurate information, name is Arabic and name in English. It is South India at the top and exact as today. Now here it is very important to know about this person Ghulam the Isle. When he made that atlas, in that he have made the maps of other countries also, in that about the Europe, American continents, and about the Asian continent also, detailed information, and it had opened the routes to the world countries. So explorers start coming, and that was impact on India also, that many of the European countries, they came to India, which we will study in the coming chapters, almost in the 6th and 7th chapter. एंड द जो सेलर्स थे वो आए और दे केम टू इंडिया एज वेल एज टू द एशियन कंट्रीज़, और सबको उनका पता है कि फिर परिणाम क्या हुए, दैट वी वर रूल्ड बाय द यूरोपियंस. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी. In this, the context of the information that also changes with the passage of time, and that also have a change on the languages. ये भाषा में भी परिवर्तन आ जाते हैं, भाषाओं में भी नए नए शब्द आ जाते हैं, और उन शब्दों के मतलब भी भिन्न हो जाते हैं. इसके साथ साथ जो सूचनाएं हैं उसके सूचनाओं के संदर्भ भी बदलते रहते हैं. तो ये इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है. तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में भी काफ़ी सारे परिवर्तन हुए, और दे आर रिटन इन मैनी लैंग्वेजेस, एंड व्हेन द हिस्टोरियन गो थ्रू दोज records, then there are some difficulties in knowing exact about that history. तो इसमें एक जो हम शब्द आज यूज़ करते हैं हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए, इंडिया आवर कंट्री, भारत हमारा देश है जिसके लिए, तो इट वाज इन 13th century इन मिनास सिराज. मिनास सिराज इतिहासकार ने इसको वर्ड यूज़ किया हिंदुस्तान फॉर द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना. गंगा और यमुना का मतलब हुआ कि जो इंडिया का जो मैप है, ये जो यहाँ हेयर कम्स दैट द सिंधु रिवर, जो सिंधु रिवर का जो ये मेन पार्ट है, तो ये जो
डिफरेंट रिवर्स जो इसमें फ्लो करती हैं. So the area which was towards the east of this Sindhu river, that was known as Hindustan. तो उन्होंने ये एक इसको दर्शाने की कोशिश की कि दैट एरिया इज दैट वाज एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, एंड इट वाज नेवर द साउथ इंडिया. साउथ इंडिया को इसमें इंक्लूड नहीं किया था. एंड 14th सेंचुरी आमिर खुसरो ऑल्सो यूज द वर्ड हिंद. हिंद भी एक शब्द था फॉर द पॉलिटिकल एंड जोग्राफिकल कल्चरल आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी के लिए कि जो एक उस एरिया का, जो इस क्षेत्र का जो कल्चर था, दैट वाज दैट वर्ड वाज यूज्ड एज हिंद. एंड इन 16th सेंचुरी बाबर ऑल्सो यूज द वर्ड हिंदुस्तान टू डिस्क्राइब ज्योग्राफी, फोना, कल्चर एंड इनहेबिटेंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. इसमें जो भूगोल, पशु पक्षियाँ और निवासियों की संस्कृति के वर्णन के लिए उन्होंने इस वर्ड को यूज़ किया. और कभी कभी आजकल में ये सुनते भी हैं कि इसको ये मानते हैं कि हिंदुओं का देश है. हिंदुओं का नहीं है, बट इट इज़ दैट वर्ड एग्जैक्टली दैट यूज्ड एट दैट टाइम दैट फॉर दैट एरिया. तो ये आज उसको प्रचलन में कुछ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में ले लेते हैं, बट वेयर एज द एग्जैक्टली इट वाज दैट द वर्ड हिंदुस्तान यूज्ड फॉर दीज रीजन्स. एंड द सेकेंड वर्ड इज़ फॉरेनर, विदेशी. एक अगर देखें तो एक सामान्य सा शब्द है. आज फॉरेनर हमारे लिए दैट इज़ दैट हु इज़ नॉट इंडियन, जो भारतीय नहीं है, जो इस देश का, जो किसी एक देश का नहीं है, दैट इज़ नोन एज अ फॉरेनर. दैट हु डू नॉट बिलोंग टू दैट कंट्री, दैट इज़ नोन एज अ फॉरेनर, विदेशी. जो उस देश का नहीं, जो भारतीय नहीं है, वो विदेशी हो गया. मेडिवल पीरियड में, आज ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट हो गया, और मेडिवल पीरियड में जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहीं था, हो सकता है कि वो किसी दूसरे गांव का हो, दैट इज़ नॉट दैट पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी. उस संस्कृति का, उस समाज का अगर वो अंग नहीं है, तो वो एक फॉरेनर था, वो एक विदेशी था. तो जो वर्ड उस समय यूज़ करते थे हिंदी में जो विदेशी के लिए, तो वो हो गया परदेसी. पर मीन्स प्राय, देश मीन्स द कंट्री, दैट इज एरिया. तो ये उस देश का नहीं है. और पर्शियन में उसको अजनबी यूज़ करते हैं. शहरों में जो सिटी ड्वेलर थे, नगरवासी थे, जो 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 लोग गांव से आ गए उस तरफ, जो शहर की तरफ को, तो उसको वनवासी या विदेशी था. वनवासी उनके लिए जो उस जगह पे रह रहा था, फॉरेस्ट ड्वेलर एज द फॉरेनर, उनके लिए वो विदेशी हो जाता था. तो so it is that how we come to know that the meaning of words can also change the terminology. और हमारे जो चेंजेस है, जो हम चैप्टर में पढ़ना है, इसमें परिवर्तनों की पड़ताल में, कि 1000 वर्षों में ना जाने कितने परिवर्तन आ गए. नेक्स्ट इज अबाउट द हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज. जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, तो दैट इज़ अबाउट द हिस्टोरियंस एंड द सोर्सेज. और इन दैट देर आर 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेज. वन इज़ द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज एंड अनदर वन इज़ द लिटरेरी सोर्सेज. लिखित होते हैं और पुरातत्व होते हैं. उसमें जो हम पुरातत्ववेत्ता जो हिस्ट्री को इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, दे ट्राई टू इस्टेब्लिश थ्रू द मैनी ऑफ द रिमेन्स. उसमें कॉइन्स हो सकते हैं, कॉइन्स में लिखा होता है उसकी कि वो जो कॉइन है वो किस शासक का है, कौन से एरा में उसने वो जो शासन किया है. तो हम वी कैन ट्रेस द हिस्ट्री फ्रॉम दैट. एंड द बिल्डिंग्स ऑल्सो नोज दैट, थ्रू दैट ऑल्सो वी कम टू नो अबाउट द पास्ट. ऐसे ही कपड़े हैं, मोनूमेंट्स हो सकते हैं, टॉयज़ है, एडिक्ट्स है, जो जितने भी हैं, तो उनके द्वारा हम जो पास्ट है, पास्ट को जानने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से वो इस्टेब्लिश हो जाए कि हम उसको, हिस्ट्री को लिख सकें. एंड दैट नेक्स्ट इज द लिटरेरी, लिखित सोर्स. लिखित में इंस्क्रिप्शन है, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, होली टेक्स्ट हो गए, क्रॉनिकल्स है, लेटर्स ऑफ रूलर्स, जुडिशियल रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स. इन सब से पांडुलिपियाँ, स्त्रोत, वितरांत, अर्जियाँ, अदालतें के दस्तावेज और कर आदि के खाते वगैरह जो थे, उनके थ्रू ऑल्सो वी कैन कम टू नो अबाउट पास्ट, कि कैसे हम पास्ट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं.
तो इसके थ्रू हिस्टोरियन जो है पास्ट को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। एंड क्योंकि सभी रिकॉर्ड्स है नहीं अवेलेबल एक जहाँ पर मैं कि हम सब पूरे इतिहास को जान सकें, तो सो दे हैव टू कंसल्ट मैनी ऑफ द that these sources, through that they can establish the stories, and that the stories are the past and the histories. Then next is about the manuscript writers or these writers. जो original writers थे वो limited थे, and at that time they were not able to copy many of the books which they used to write. तो उस समय प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं थी. सो फॉर दैट दे यूज टू देयर वर द स्क्राइब राइटर्स. तो स्क्राइब राइटर्स होते थे जिनको हम लिपिक या नकलवीस, नकल करनी मतलब कि जो एक बुक बनी है छपी है उसको सेम एज इट इज़ उसको उतारना है. तो ये एक कोशिश करते थे लिखने की, तो वो उसमें डिज़ाइन भी करते थे. तो लेकिन अब कभी कभी क्या होता है कि जो एक नकल करने वाला है वो अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, उसकी भाषा नहीं समझ आई, उसके बाद किसी अगर मान लो ये जो व्यक्ति यहाँ पर है अगर इसकी जो कॉपी बनी हुई है कोई दूसरा अगर इसको पढ़ना चाहता है और उसकी राइटिंग को ठीक से समझ नहीं पाया, और दूसरा क्या है कि जो हिस्ट्री है जो फैक्ट है उसको परिवर्तन कर दिया. अब टू राइट द हिस्ट्री इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट देन, क्योंकि अगर शब्द बदल गए मीनिंग भी बदल जाएगा, तो सब चीज़ें बदल जाती है. हियर वी कैन सी वन ऑफ दिस इज द वन पार्ट एंड दिस इज द अनदर पार्ट. तो इसमें आप एक राइटिंग देखेंगे और एक दूसरी राइटिंग देखेंगे. तो ये जो फर्स्ट राइटिंग है ये है नस्तलिक स्टाइल. तो ये जो नस्तलिक स्टाइल है, दिस नस्तलिक राइटिंग अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अपनी पुस्तकों में भी देखना, यू सी योर बुक ऑल्सो. सो इन दैट यू विल सी दैट इट इज़ क्लियरली विजिबल, इट इज़ स्टाइलाइज्ड राइटिंग, कर्सिव राइटिंग है, और इजीली हम इसको पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर तरीके से लिखी हुई है. तो ये ख़ास तौर से उस समय पर्शियन और जो अरेबिक भाषा के लोग थे तो वो इस तरह से लिखते थे, तो जो हैंड राइटिंग का तरीका था वो थोड़ा सा बदल जाता था. तो एक राइटिंग इस तरह की है, ये इस राइटिंग को कहते हैं शिकास्त स्टाइल. शिकास्त स्टाइल में इसमें जो है थोड़ा सा क्लोज है, आप देखेंगे क्लोज सा लिखा हुआ है, एंड डेंसर है, बहुत ज़्यादा डेंसर एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. तो कई बार में क्या होता है कि भी जो राइटर्स होते थे अगर उसकी जो राइटिंग है कर्सिव राइटिंग जो अपनी राइटिंग है, इफ़ देयर आर द डिफरेंसेस, सो अनदर हु विल कॉपी फ्रॉम these types of the writings, तो they will find very difficult in knowing that past. तो पास्ट को इस्टेब्लिश करना हिस्टोरियंस के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है. So here that we have discussed about the scribes and scribe writers, the two types of the handwritings. और एक और है जो हिस्टोरियंस के लिए बड़ा मुश्किल था कि जो राइटर्स है सम टाइम वो भी the books which they used to write after the gap of certain period, तो they used to change certain facts. तो कुछ उसमें परिवर्तन आते. तो जो ये एक 14th सेंचुरी में क्रॉनिकल लिखा गया था बाय द जियाउद्दीन बर्नी, उसमें भी फैक्ट्स जो हैं वो डिफ़र करते हैं. दिट वॉज रिटन इन 1356, और 2 साल के बाद जो उसने 1358 में लिखा तो उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आए. तो हिस्टोरियन को जो पहले जो 1356 में विच दे गॉट those records, so they were knowing that this is only the history. और 19th सेंचुरी में जब एक दूसरा ये जो उनने बुक लिखी तो उससे पता लगा कि दोनों में ही अंतर काफ़ी है. देयर आर मैनी ऑफ द डिफरेंसेस. So it's very difficult for historians that how to trace the history properly and to write the history. So that is that historian and their sources, that how they try to find out that sources. So in this chapter, in this topic we try to know about the
the map study, new old terminology, sources to know the past that we have studied. So in the next video we will try to cover other topics. Thank you.